Hello students, today I will explain exercise 11F, so which is very important exercise. In next classes it is also used, so it is solve and verify. Okay, so first question is x plus 7 equal to 18. Okay, so how to solve? You know that the rule is that plus is going to minus. If here is minus, then minus go there with the minus sign. ठीक है, divide go there with the multiply sign. If multiply sign is here, then it go to multiply sign. Means opposite हो जाएगा बेटे. प्लस है तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा राइट साइड जाके. ठीक है, so it is 18 minus 7. Okay, so 18 minus 7 equal to 11. Okay, so this is the answer of this equation. Okay, so this is the solution. Now we check it, bete. So how to check? Firstly write the question again. Okay, then put the value of x. X is 11. 11 plus 7, 18. So 18 equal to 18 is coming. So LHS means left hand side equal to right hand side. Both sides are equal. So if your both sides are equal, your answer is right. Easy questions. So now look at the fourth part. Here is minus. You are afraid from minus. Okay, no problem. I will clear your problem. So x minus 3. So now look carefully. So here minus go there with the plus sign. Okay, so it is a plus minus minus. Okay, so minus कर दो बेटे इसका 1 आ गया. 4 minus 1, 4 minus 3 1. अब कैपिटल नंबर क्या क्या माइनस. हेयर इंटीजर चैप्टर इज यूज्ड. ठीक है बेटे, सो प्लस माइनस माइनस हो गया बेटे, 1 आ गया. और कैपिटल नंबर के आगे कैपिटल नंबर क्या है 4, तो 4 के आगे क्या है माइनस, तो माइनस 1 लगा दिया. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई -1. अब चेक करो बेटे, चेक हाउ टू चेक. फर्स्टली राइट द क्वेश्चन अगेन. ओके, देन पुट द वैल्यू. x इज -1, सो इट इज माइनस माइनस प्लस. कैपिटल नंबर कौन सा 3. 3 के फ्रंट पे क्या है माइनस, तो -4 इज इक्वल टू -4. Okay, so both sides are equal. Now in 7th question bete, here is q is there, so I will also explain. It is also same bete. If here is x, y, a, b, c कुछ मर्जी हो बटे, that is variable. Okay, तो variable को आपने एक साइड में रखना है. ठीक है, और this 14 go there with minus sign. Okay, so where there is no sign, here is मल्टीप्लाई. इन दोनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई बेटे राइट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड. ओके, सो इट इज -7. सो हाउ टू चेक. फर्स्टली राइट द क्वेश्चन अगेन. 2q plus 14 equal to 0. सो q इक्वल टू -7. सो -7 बेटे पुट कर दो. ठीक है, जहां पर q है तो 2 - 7 इज -14. तो 14 minus 14 0. So 0 equal to 0. Left hand side equal to right hand side. Similarly, bete look at the 10th question. Other part bete do yourself. Okay. So here also bete look carefully. Here is a multiply in between. So multiply bete क्या हो जाएगा divide. Divide कर दो बेटे. अब divide को आपको solve करना आता ही है कि क्या होता है कि it is multiply and second is reciprocal. So it is 7/3. Okay, 3 to the 6. Okay, so 7 to the 14. So x value is 14. I repeat, multiply बटे divide हो गया. divide को solve करना आता ही आपको. ठीक है, तो divide change into multiply, और जो 3/7 है उसका क्या हो जाएगा reciprocal. ओके, सो 7/3. फिर कट कर दो इसको. ठीक है, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर कट कर सकते हैं ना, तो 7 to the 14. अब हाउ टू चेक. फर्स्टली राइट द क्वेश्चन. 3/7 x इक्वल टू 6. सो x वैल्यू इज 14. ठीक है, 7 to the 14, 3 to the 6. So 6 equal to 6 is coming.
So our answer is right. Understand? Look at the 12th question बेटे. In 12th question, look carefully. Both side variable are there. So हम क्या करेंगे बेटे कि वेरिएबल वन साइड कलेक्ट कर लेंगे, कांस्टेंट एक साइड इकट्ठे करेंगे बेटे. सो लुक केयरफुली. हियर माइनस गो देयर विद प्लस साइन. दिस 5 गो देयर विद माइनस साइन. जहां कोई साइन नहीं होता प्लस साइन. ओके, माइनस क्या हो जाएगा बेटे प्लस. ओके, दिस 5 माइनस में हो जाएगा बेटे. ओके, 5 माइनस 3 2x. 5 माइनस 3 2x. 3 माइनस 5 माइनस 2. अब ये बेटे इस सारे क्वेश्चन में हम वेरिएबल ही क्यों, क्योंकि वेरिएबल एक साइड इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जो कांस्टेंट है और जो हमारे पास वेरिएबल है वो कभी भी प्लस माइनस नहीं हो सकते. अंडरस्टैंड? हमने अलजेब्रा चैप्टर में स्टार्टिंग में किया था ना. ठीक है. सो इट इज मल्टीप्लाई साइन. सो इट इज डिवाइड. सो 2 डिवाइड 2 इज -1. Understand? So how to check? Write the question बेटे. So 5 minus 3x equal to 3 minus 5x. So put the value of x बेटे. So it is 5 minus 3 minus -1. Where is x? We put -1. Now look carefully. Minus minus plus 3 1s are 3. Minus minus plus 5 3 8. 8 equal to 8. So left hand side equal to right hand side. Understand? Similarly here also bete in 17 number question, firstly you collect variables. So x over 2, this plus go there with the minus sign, this minus go there with the divide sign. Okay, so here also bete, now you know that if denominator are different, so take LCM. So LCM is 2 3s are 6. Okay, downside is 6. अब देखो बेटे इसको हमने सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे कि 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है, इज 3. सो 3x, ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसके साथ डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई. अगेन यू कैन लुक. 6 डिवाइड बाय 3 इज 2. ठीक है, 3 2 6, 2 1 2. सो इट इज 2x. ओके, सिमिलरली हाउ टू सॉल्व? क्रॉस मल्टीप्लाई. 2 5 10. एलसीएम क्या है? 2. ठीक है, 3 minus 2 1x. ठीक है बेटे. सो इट इज 11 over 2. नाउ इट इज डिवाइड. दिस कांस्टेंट इज डिवाइड. अब हम इसको हटा क्यों रहे हैं? क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है. हर क्वेश्चन में देखो हम जो भी x के साथ है उसको हटाते हैं. ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन. ठीक है. सो नाउ लुक केयरफुली. नाउ इट इज डिवाइड, देन इट गो देयर विद द मल्टीप्लाई साइन. सो मल्टीप्लाई. 2 3 6, इट इज 33. Okay, this check you do yourself. Okay, put the value. Where is x? You put 33. Here you also put 33. Okay, and solve both side. Okay, so this will be left hand side equal to right hand side is coming. Okay, so this part do yourself. Okay, look at 19 number question bete. Here is also fraction. Okay, I will solve one more question of fraction. So now look carefully. This question is very easy bete. Look carefully. Here is bete 1. So 4 1s are 4. Okay, where there is no number, here is 1. Okay, so 4 1s are 4. Cross multiply कर दो bete. 4 1s are 4. 4p. This p same. Okay, so LCM is 4. I repeat this step. 4 1s are 4. ओके, जब हमारे पास कोई नंबर नहीं होता नीचे बेटे 1 होता तो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई. 4 1s are 4. So here बेटे LCM of 2 and 4, you know that it is 4. Okay, so downside you can divide. 4 divided by 2 is 2. ऊपर मल्टीप्लाई करते 2 7s are 14. और सेकंड मेथड क्या करवाया हुआ बेटे मैंने कि 2
अब डिनोमिनेटर हमने इक्वल करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो बेटे। ओके, सो डाउन साइड इज 4, हियर इज आल्सो 4 बेटे। जो दोनों साइड 4 आ गया तो हम क्या ले सकते हैं, हम एलसीएम 4 ले सकते हैं। ठीक है, आई रिपीट, अब देखो हमने एलसीएम हमारे पास 4 आ गया बेटे, सो हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारे पास 4 बन जाए। तो 7 2 तो 14, अब यहाँ पर क्या आ गया, p ओवर 4। तो अब देखो एलसीएम सेम आ गया, तो 4 डाउन साइड, ऊपर वाले नंबर हम प्लस करते हैं, 14 प्लस p। अब देखो अब ये प्लस नहीं हो सकता क्योंकि दीज आर डिफरेंट, कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है। अब यहां पर हो सकता है माइनस, 4p माइनस 1p 3p। ठीक है, सो इट इज 3p ओवर 4। नाउ लुक केयरफुली, नाउ वी कैन, you know that it is multiply sign. Okay, multiply go there with divide sign. तो 14 प्लस p, ये क्या बन गया बेटे, डिवाइड करेंगे तो रेसिप्रोकल हो गया 4 ओवर 3, 4 4 कट आउट। ठीक है, तो अब देखो नाउ लुक केयरफुली, पहले हमने डिवाइड में था। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, 14 प्लस p अपॉन 3। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 3p, चाहे यहां पर 3p बेटे इसको सेम ही रख लेते हैं हम। ठीक है, तब भी आपका क्वेश्चन ठीक चलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3p, सो हियर इज 14 प्लस p। ओके, नाउ कलेक्ट, इट इज अ प्रीवियस सम। अब कलेक्ट कर लो वेरिएबल, 3p माइनस p इक्वल टू 14, सो इट इज बेटे 2p, इट इज 2p, 2p इक्वल टू 14। अब यहां पर मल्टीप्लाई है बेटे, मल्टीप्लाई क्या हो गया, डिवाइड, तो 14 ओवर 2 इज 7, 14 ओवर 2 इज 7। ओके, सो यू कैन लुक केयरफुली, I will write बेटे अपसाइड, नो प्रॉब्लम। सो दिस स्टेप आई विल राइट अपसाइड। ठीक है, अब एक बार शुरू से समझ लो बेटे सारा क्वेश्चन। देखो बेटे सबसे पहले हमने क्या किया, ठीक है, वेरिएबल के आगे 1 लगा सकते हैं बेटे, हम डाउन साइड भी 1 लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो जहां पर नीचे 1 आ जाए तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4p is 4p। ओके, सो एलसीएम इज 4। ठीक है, नाउ वी सोल्व दिस वन, हमारे पास क्वेश्चन ये था बेटे। अब 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो कैसे सोल्व करते हैं इसको बेटे, कि हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 4 आ गया, अब 4 इसको डिनोमिनेटर बनाना है, तो बेटे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ओके, सो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बेटे। ओके, सो हियर इज p ओवर 4, 4 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या रह गया बेटे, 14 प्लस p। अब आपको पता है कि वेयर देयर इज नो साइन, ठीक है, हियर इज मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई क्या होगा, रेसिप्रोकल 4 ओवर 3। ओके, सो दिस इज लेफ्ट 14 प्लस p, 4 4 कट आउट हो गया, और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सो 3p बन गया बेटे। उसके बाद हमने वेरिएबल से इकट्ठे कर दिए, तो 3p, p बेटे क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, सो इट इज 14। ठीक है, 2p इक्वल टू 14, तो मल्टीप्लाई बेटे क्या हो गया, डिवाइड, 14 over 2 is 7, 14 over 2 is 7. Now how to check? Firstly write the question again, p minus p over 4, 7 over 2, p over 4. Now put the value of p bete, p is 7, where is p, you put the value 7. Now again bete cross multiply, we can do cross multiply, 7 4 the 28. ओके, हियर एलसीएम इज 4, सेम प्रोसेस। ठीक है, वहां पर p था, बस यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम हो, सॉरी डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, तो वी कैन टेक एलसीएम, एलसीएम इज 4। अब क्या करेंगे बेटे, 2 से 2 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड। ओके, बिकॉज वी वांट टू मेक डिनोमिनेटर सेम। ओके, सो 7 2 is 14, 14 7 21। ठीक है, हियर इज बेटे 28 minus 7, 21 over 4. So both side are
equal. So left hand side equal to right hand side. So our answer is right. Understand bete? Yes bete. Look at 20th question. Now don't afraid from bete lengthy. ओके आपने बस ये रूल देखना है कि हमारे पास y है, ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो भी हमारे पास साथ है उसको हमने फिनिश करना है, उसको गोली मारनी है, ठीक है. सो देन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू सोल्यूशन. ओके सो हाउ टू फाइंड आउट वेयर देयर इज नो साइन, यू नो दैट मल्टीप्लाई. ओके सो मल्टीप्लाई क्या होगा बेटे, डिवाइड 18/5. सो दिस प्लस बेटे गो देयर विद माइनस साइन. So here is bete -1 plus go there with minus sign. ठीक है, plus go there with minus sign. Now look carefully bete. Here is also 1 bete 1/1 we can write. So LCM LCM we can take or cross multiply. 5 ones are 5. Okay, so 8 minus 5 downside is you know that 5. 5 ones are 5. ओके सो नाउ माइनस माइनस प्लस. सो 13 हो गया बेटे, कैपिटल नंबर के आगे माइनस है, अपॉन 5 इज कमिंग. ओके सो माइनस माइनस कट आउट. सो y इक्वल टू 13/5. नाउ वेरीफाई, चेक. सो हाउ टू चेक, यू राइट द क्वेश्चन अगेन. ओके सो इट इज -8. ओके सो पुट द वैल्यू ऑफ y इज 13/5 plus 1 equal to -8. Now look carefully bete. Here is minus 13/5. Now again bete we can write 1/1. If 1/1 is there, so LCM. So cross multiply also. 5 ones are 5. LCM is 5. We can do cross multiply. 5 ones are 5. Okay, so here is bete -13 plus 5 plus minus minus. So 13 minus 5 8. कैपिटल नंबर के आगे बेटे माइनस है तो माइनस लगा दो. सो 5 कट आउट, -8 इक्वल टू -8. सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड. ओके इजी क्वेश्चन ना. नाउ ऑल पार्ट्स आर सेम. नाउ लुक एट द लास्ट क्वेश्चन बेटे. लास्ट क्वेश्चन इज आल्सो सेम. फर्स्टली सोल्व द ब्रैकेट. You know that if 15 is outside, then it multiply inside also na. So it is 15x. 15 for the 60. 2 also bete 2x plus minus is minus. 2 3 is 6. So here 3x bete minus plus minus. 3 8 is 24. Okay, now collect all variable. So 15 minus 2 13x. 30 minus 3x 10x. ओके अब कांस्टेंट इकट्ठे कर लो बेटे. कांस्टेंट को हम राइट साइड ले जाते हैं बेटे. सो 60 प्लस का हो गया बेटे, हियर इज प्लस 6 हो गया बेटे राइट साइड. राइट साइड जाके हमारे पास माइनस प्लस में हो जाता है. और 24 आल्सो गो देयर विद प्लस साइन. हियर 0 में कुछ ऐड करो माइनस करो, सेम आंसर. ओके सो इट इज 10x. सो 60 प्लस 66 70 और 20 90. इनको प्लस किया बेटे हमारे पास क्या आ गया 90. अब हमारे पास x वैल्यू इज 90. यू नो दैट इफ मल्टीप्लाई साइन डिवाइड हो जाएगा बेटे अपॉन 10. तो 9 इज कमिंग. नाउ हाउ टू चेक, फर्स्टली राइट द क्वेश्चन अगेन. ओके नाउ आफ्टर दैट व्हाट इज द स्टेप, पुट द वैल्यू. Okay, put the value of x. X value is 9. So 9 minus 4. Here 9 plus 3. Here bete put the value of x 9 plus 8. Okay, equal to 0. So now look carefully. 9 minus 4 5. 9 plus 3 12. 9 plus 8 17. 15 5 is 75. 24. 17 3 is 51. Now solve it bete. 75 minus 24, it is 51. 51 minus 51 0. So 0 equal to 0. So left hand side equal to right hand side. So this is the method. Okay, always you have to both side equalize, means both sides should be equal. So this is the process. All questions are same like that. Better try yourself. Thank you very much.